पहले बता दूँ GPL का मतलब क्या होता है? हाँ ठीक है बोल दो। GPL का मतलब होता है पिछवाड़े पे ला। गांड पे लात। कट कर दूंगा तो- भाई, रुक जा, ये पिछवाड़ा बोल। तो पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देता हूँ, ठीक है, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। सो हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय चैनल। सो आज आई थिंक वी आर मीटिंग आफ्टर वेरी वेरी लॉन्ग टाइम एंड सॉरी फॉर दैट, थोड़ा बिजी हो गया था एकेडमिक्स में एंड आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम हमारे साथ है एकलव्य। सो ही इज़ फ्रॉम हांगकॉन्ग यूनिवर्सिटी और फर्दर यही आपको बताएंगे कि इनके बारे में कि ये कौन है, ठीक है। सो हाय एकलव्य, सो कैन यू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ? Hi everyone, my name is Eklavya Agarwal. I am a third year computer science student at the City University of Hong Kong. And मैं 6 महीने पहले IIT आया था for exchange program. Like many of you might not be knowing what is an exchange program. So let me tell you in a little bit detail about what is it. So what happens is IITs, the institutes like IIT and NIT, they offer programs for visiting students. Now these students are those who are studying abroad. For example, I am studying in Hong Kong, so they provide this opportunity to me to come to IIT Delhi and study here for about 6 months, basically 1 semester. So I got accepted to IIT Delhi and I came here to study in my 4th semester of my engineering degree. And currently it is 2024 March and I came here again just to meet my friends. That's all about my introduction. Yeah, it's a very brief one. Okay, so moving further, so बेसिकली ये जो देखने वाले हैं, ठीक है, वो मे बी या तो +1 के स्टूडेंट होंगे या तो +2 के स्टूडेंट्स होने वाले होंगे, ठीक है, और मे बी वो कॉलेज में भी हो सकते हैं। सो मैं मतलब आई वुड लाइक टू नो कि हाउ वाज योर 11th एंड 12th क्लास, मतलब एट दैट टाइम व्हाट यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एक्चुअली, बिकॉज आई थिंक इन ऑर्डर टू गेट अ फॉरेन यूनिवर्सिटी यू हैव टू प्रिपेयर समथिंग एल्स ना। आई थिंक ASET, it is ASET. So can you tell us what was your goal, exact goal or focus in +1 +2 and what was your mistakes that you have done and you would like others not to do that? Thank you for your questions. So basically after the 10th class boards got over, I was more interested in studying abroad than in India. And for that reason, I didn't prepare for JEE. I directly went to develop my extracurricular activities and to focus on that study abroad exam. There are 2 study abroad exams. One is ACT and one is SAT. It is important, I think you can elaborate about these exams also. Yeah, so like ACT is mainly if you want to get into American universities. And SAT is also for that only, but SAT is accepted globally. ACT is, I think, out of 40. I didn't give that exam, but it is out of 40. And SAT is out of 1600 in my time. Now I think the format has changed. It is online as well. And so I've mainly focused on SAT, extracurricular activities, and my academics. And I didn't prepare for JEE. And in class 11th, around the end of my class 11th, I gave the SAT and I got a score of 1400 out of 1600, which was good enough to get a full scholarship in abroad universities. Nice. For that reason, I like my SAT was completed. Then my extracurricular activities, I developed a lot of coding skills. I participated in coding competitions. Nice. So 2 of the things are done. The third one, which abroad universities consider, is academics. And for that, I worked hard in my board exams, the class 12th board exams. Basically, the abroad universities consider your class 10th board exams and your class 12th board exams. So in class 10th, I got 98%. In class 12th, I got 97%. And with that, I was able to get a full scholarship abroad in Hong Kong. And it also covers my tuition fees as well as my living expenses. So I don't need to pay any money to them. It's completely free. And I think over the course of this video, I can tell you more details about how I got it. Yeah. So thanks for briefing us about the exams. So can you tell me what kind of extracurricular activities was that you were prepared for and you have done in +1 +2? And I think before moving further, I would request you to use a little bit Hindi also, because I think from my personal experience when I was in +1 and +2, so at that time my English was not that good जो कि अभी है. Okay, so can you please speak little bit Hindi also for our audience? If you are comfortable, Okay. If you are comfortable about it, okay. So yeah, so what kind of extracurricular activities you are talking about, and is there was any mistakes that you have done in +1 +2 that you would like us to know? I would like to share कि मैं भी एक इंडियन ही हूँ तो मेरा भी हिंदी अच्छी आती है मुझे. So let's talk more in Hindi now. So class 10th ख़त्म होते ही class 11th आया. मेरे सीनियर्स ने मुझसे कहा कि 11th मैटर नहीं करता बिल्कुल भी, तो मैंने भी पढ़ाई नहीं करी. बट कुछ अब्रॉड यूनिवर्सिटीज़ 11th का ग्रेड भी कंसिडर करती हैं. अच्छा. तो मेरे तो 84% आए थे, मैंने बिल्कुल पढ़ाई नहीं करी थी उसमें. बट you should try to get above 92% at least. Then that was only one mistake I did. And the other mistake that I did was the abroad universities give a lot of weightage to the extracurricular activities. Okay, what kind of extracurricular? So you should participate in quizzes. Quizzes हो गई and competitions हो गए. तो 6th, 7th, 8th, 9th, 10th. Okay. हम लोग को पता नहीं रहता है वैल्यू इन सब competitions की.
तो अब्रॉड यूनिवर्सिटीज़ इसको बहुत वैल्यू करती हैं. सो इफ़ यू आर प्लानिंग टू गो अब्रॉड देन यू हैव टू पार्टिसिपेट इन ऑल ऑफ दीज एक्टिविटीज़. देन these are a few things and the few mistakes that I made. So extracurricular activity you are talking about the Olympiad basically, I guess. So there are Olympiads which are on national level also, और मतलब स्कूल लेवल पे भी होते हैं, है ना. सो स्कूल लेवल वाले भी कंसिडर किए जाते हैं कि सिर्फ नेशनल वाले किए जाते हैं, जैसे PRM हो गया, RM हो गया, जो कि मैंने दिया था, या केमिस्ट्री में होता है ना, INCHO वगैरह वगैरह. तो वो तो आई थिंक कंसिडर करे जाते ही होंगे. स्कूल लेवल पे जो होते हैं वो भी कंसिडर किए जाते हैं. अच्छा, ग्रेट. तो आई थिंक ये अच्छा इन्फॉर्मेशन है. हाँ, ओके, ग्रेट. सो आपको फॉरेन मतलब फॉरेन एग्जाम और उससे मतलब फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ मिलेगी, आपको इसके बारे में मालूम कहाँ से पड़ा? बिकॉज टू बी वेरी ऑनेस्ट मेरे को घंटा नहीं पता था, ठीक है, ये एग्जाम होते हैं. जब मैं 12th क्लास में था ना, लिटरली जब मैं JEE दे दिया तब मेरे को मालूम पड़ा कि अच्छा ये एग्जाम्स भी होते हैं, ये भी दे सकते थे, ठीक है. सो आपको ये कहाँ से मालूम पड़ा एग्जैक्टली? तो बेसिकली मैं सिटी मॉन्टेसरी स्कूल से हूँ. तो लखनऊ में बेसिकली दैट स्कूल इज़ द लार्जेस्ट स्कूल इन द वर्ल्ड. यू कैन सर्च इट ऑन गूगल. सिटी मॉन्टेसरी स्कूल के पास गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड है, लार्जेस्ट स्कूल है. तो हमारे स्कूल से बहुत सारे बच्चे अब्रॉड जाते हैं. तो एक मेरा भी ड्रीम था कहीं ना कहीं कि मैं भी अब्रॉड जाऊँगा. एंड एक मतलब हम सभी इंडियंस का ड्रीम होता है कि एक अच्छी लाइफ चाहिए, एक अच्छी लाइफ स्टाइल चाहिए. तो मेरा भी ड्रीम था कि फॉरेन डॉलर्स में कमाएंगे, अच्छी लाइफ मिलेगी, अच्छी वाइफ मिलेगी. तो मैंने भी फिर अब्रॉड की रिसर्च करनी शुरू की. मैंने 9th के एंड में शुरू कर दी थी अब्रॉड की रिसर्च. तो मुझे इन सब एग्जाम्स के बारे में पहले से पता था. एक्टिविटीज़ एक्स्ट्रा करिकुलर कंसिडर होती है, मुझे ये भी पता था. देन एकेडमिक्स कंसिडर होता है. तो तब से मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी. सो दैट वाज माय जर्नी. सो आपने JEE भी दिया था क्या, कि मतलब इसको फुल्ली इग्नोर कर दिया था? मैंने JEE को फुली इग्नोर कर दिया था. अच्छा, तो बट मेरी लाइफ में एक मतलब थोड़ा पर्सनल शेयर कर देता हूँ. एक थोड़ा सा गिल्ट भी रहता है कि कहीं ना कहीं मुझे JEE देना चाहिए था. मतलब अब्रॉड जब आ गया मैं, तब मैंने सोचा कि JEE देना चाहिए था. तब JEE इज़ इंपॉर्टेंट. वाई? बिकॉज इफ़ यू क्रैक दैट एग्जाम देन यू हैव अ कॉन्फिडेंस कि मैंने भी कुछ उखाड़ा है. तो पूरी लाइफ भर एक कॉन्फिडेंस रहेगा कि हाँ मैंने भी JEE निकाला है, मैं भी IIT में था. तो वो हमेशा साथ रहेगा आपके. तो यू शुड नॉट कम्प्लीटली इग्नोर इट. इफ़ यू वांट टू अचीव समथिंग बिग तो JEE भी काफ़ी अच्छा ऑप्शन है, एक अर्ली एज में क्रैक कर लेना. ओके, सो आई थिंक आपने यहाँ पे 6 महीने बिताए थे पहले, है ना, इन योर आई थिंक 4th सेमेस्टर. सो हाउ वाज द लाइफ हियर, एंड मतलब ये बेटर है एज कम्पेयर टू हांगकॉन्ग वाली लाइफ, और यहाँ पे मतलब कैसा फील होता है, मतलब डिफरेंस क्या है, तो खुल के बता सकते हो आप? सो बेसिकली जब मैं आया था यहाँ पे, आई थिंक आई केम इन माई 4th सेमेस्टर विच वॉज 2023 जनवरी 1 जनवरी 2023. तब मैं आया था यहाँ पे न्यू ईयर के दिन. एंड जैसे ही मैंने एंटर किया कैंपस, मुझे उस दिन रात में उल्टी हो गई थी क्योंकि नहीं, कैंपस का एनवायरनमेंट देख के. तो बताता हूँ मैं रियलिटी. तो हांगकॉन्ग जैसे आप गूगल भी कर रहे हो तो बहुत ज़्यादा एडवांस्ड है इंडिया के कंपैरिजन में. तो वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत स्मार्ट होता है, सब कुछ डस्ट भी नहीं दिखेगी आपको, इतना स्मार्ट है वहाँ का सिस्टम. तो जब मैं यहाँ पर पहले दिन आया, मुझे तो एनवायरनमेंट बिल्कुल पसंद नहीं आया, कि कमरे वगैरह सब एकदम अलग है. बट फिर धीरे धीरे 2 हफ्ते के बाद मैंने फिर यहाँ का एकेडमिक एनवायरनमेंट देखा. तब यह मैंने महसूस किया कि मतलब डिफरेंस तो था अच्छा खासा. IIT इज़ 3 to 4 times टफर देन माई कॉलेज, दैट इज़ ट्रू. एंड मेरा भी एक कहीं ना कहीं माइंडसेट था कि मुझे भी कम्पीट करना है यहाँ के CS के IITians होते. तो उसी हिसाब से मैंने फर्स्ट क्या IIT में होता है कि 2 माइनर्स थे मेरे टाइम पे और 1 मेजर एग्जाम था. तो माइनर 1 तक मेरा क्या सीन था कि मुझे कम्पीट करना है, बिकॉज आई वांटेड टू सी कि मैं स्टैंड कहाँ करता हूँ यहाँ पे. तो फिर मैंने प्रिपरेशन शुरू उसी हिसाब से करी अपनी माइनर 1 में. मैंने 5 कोर्सेज लिए थे यहाँ पे, जिसमें से 3 हार्ड थे, 2 ईजी थे, ताकि बैलेंस रहे मेरा. एंड मैंने उस हिसाब से मेहनत करी थी. एंड और बाकी जो लाइफ थी वो फिर फर्स्ट 2 वीक्स के बाद लाइफ मेरी हैबिट हो जाती है सबको. तो उसके बाद से फिर लाइफ काफ़ी स्मूथ हो गई थी. एंड ब्रेकफास्ट लंच डिनर तो बहुत अच्छा मिलता है IIT में. देन उसके बाद अच्छा है, जनरली अच्छा है. हाँ, बहुत अच्छा डिनर रहता है ब्रेकफास्ट लंच डिनर. मतलब अब्रॉड में तो नॉनवेज ही रहता है, हांगकॉन्ग में. बाकी फिर इंडिया में वेज खाना शुरू किया, तो काफ़ी अच्छा था. बाकी मेरा रूममेट भी एक्सचेंज में था, तो साथ ही में रहते थे, प्रॉब्लम शेयर करते थे. बाकी फिर एनवायरनमेंट से मैं यूज टू हो गया. तो फिर मेरा फोकस चला गया पूरा का पूरा एकेडमिक्स में. एक बार इंफ्रास्ट्रक्चर सब खत्म हो गया एनवायरमेंटल, फिर एकेडमिक्स पे फोकस रहा. तो फिर मैंने देखा यहाँ के प्रोफेसर्स वगैरह भी, मेनली यहाँ के जो प्रोफेसर्स हैं IIT के, दे आर मोस्ट ऑफ देम आर IITians ओनली. किसी ने PhD IIT से करी होगी, किसी ने बैचलर्स IIT से किया होगा, मास्टर्स किया होगा, फिर अब स्टडी अब्रॉड किया होगा किसी ने. तो मोस्ट ऑफ देम आर IITians एंड दे आर वेरी स्मार्ट एज वेल. तो फिर धीरे धीरे करके फिर मैंने पिकअप किया यहाँ का वर्कलोड, क्योंकि ऑनेस्टली स्पीकिंग वर्कलोड इज़ वेरी हार्ड है. बट आपको टाइम मैनेजमेंट काफ़ी ज़्यादा करना पड़ेगा, एंड देन आपका धीरे धीरे कंप्लीट हो जाएगा. तो इस तरह से मैंने टाइम मैनेजमेंट किया. माइनर 1 में बहुत मेहनत करी, मैंने 4-6 घंटा सोता था, बाकी मैंने पूरे पढ़ाई करी. तो मेरी काफ़ी अच्छी पोजीशन बन गई थी वहाँ पे. तो काफ़ी फ्रेंड्स भी बने हमारे टॉपर्स से आके, फिर उनके साथ मैंने ग्रुप मेट्स बनाए. फिर माइनर 1 में देख लिया मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ, फिर मैंने पढ़ाई छोड़ दी. तो माइनर 2 में मेरा एवरेज की बिलो चला गया. ये तो बहुत कॉमन स्टोरीज है. क्योंकि एक और चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि विजिटिंग स्टूडेंट्स जो आते हैं ना यहाँ पे, उनका क्या सीन है कि आपको सिर्फ पास होना होता है. आपको कुछ ग्रेड से मतलब नहीं, आप बस पास हो जाओ कोर्सेज में,
तो इसलिए मेरा क्या था कि बस माइनर 1 तक पढ़ूंगा, अच्छे से देख लूँगा कहाँ स्टैंड करता हूँ, फिर पढ़ाई छोड़ दूंगा। ओके। मैंने पढ़ाई छोड़ दी फिर, और फिर मैंने मेनली नेटवर्किंग पे फोकस किया, क्योंकि ऑब्वियसली IITian से आप नेटवर्क बनाओगे तो कहीं ना कहीं वो हेल्प करेगा आपकी लाइफ में। ऑब्वियसली। देन फिर मेरे बहुत सारे दोस्त बन गए, यहाँ पे 30-40 दोस्त बन गए, इसीलिए मैं दोबारा भी आया हूँ। आज 2024 है, आज मार्च 17 2024 है, 1 साल जस्ट बाद उसके। छुट्टी है वहाँ अब्रॉड में अटेंडेंस नहीं होती है, अरे यार इसीलिए मैं आ गया था। 75% गाइस अटेंडेंस। तो ये सीन था। बाकी फिर अप्रैल में यहाँ पर एंड हो गया था, लकीली मैं सारे कोर्सेज में पास हो गया था, एंड फिर बस वापस हांगकॉन्ग। तो हांगकॉन्ग आने पर कुछ लगा कि याद आई क्या मतलब? हाँ, IIT की याद मुझे बहुत ज़्यादा आई थी, तभी मैं वापस भी आया था। मैं लास्ट ईयर नवंबर में भी आया था, और आज मैं फिर आया हूँ, तो सेकंड टाइम है मेरा वापस आने का यहाँ पे। एंड आप सोच रहे हो कि मैं कैसे यहाँ पर बैठा हूँ, मुझे अलाउ कैसे किया गया, तो तरीके होते हैं। ओके ग्रेट। सो कोई पर्टिकुलर इंसिडेंट्स जो यहाँ पे हुआ है जो कि मतलब दिल में रह गई है बातें, मतलब बहुत याद आती है उस इंसिडेंट की, मतलब सोचो तो बहुत फनी लगता है, क्या बकचोदी हो रही थी भाई, क्या किया था ये वगैरह वगैरह? हाँ, मतलब ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स तो यहाँ पर हुए हैं मेरे। फॉर एग्जाम्पल मिड टर्म ब्रेक था शायद यहाँ पे माइनर के बाद, तो सब लोग अपने शायद घर चले गए थे। तो नीचे यहाँ पर IIT में क्या होता है कि मैथ्स के पास एक हॉल भी होता है, यहाँ पर लाइब्रेरी के बगल में एक हॉल होता है, मैं वहाँ बैठा था। तो यहाँ पर बच्चे बड़े अजीब से गेम खेल रहे थे। यहाँ पर हम लोग दमशराद होता है ना शायद, कि आपको गाना गाना होता है, फिर जो एंड होता है फिर उस लेटर से एक दूसरा बंदा गाना गाता है। तो अंताक्षरी। अंताक्षरी। और कोई इससे थोड़ा बेटर मेमोरी? बाकी और मेमोरीज यहाँ पे नाइट लाइफ काफ़ी अच्छी है IIT की। यहाँ पर नाइट मेस बहुत सारी है, अब्रॉड में नाइट मेस नहीं होती है ऐसे, यहाँ पर नाइट मेस काफ़ी सारी है, नीलगिरी पे है। हाँ, कहीं भी चले जाओ, एंड ग्रुप में जनरली बच्चे जाते हैं तो फिर काफ़ी मज़ा आती है वहाँ पे। और जनरली कंप्यूटर साइंस का तो वर्कलोड हार्डेस्ट ही है शायद यहाँ पे, तो देर रात तक असाइनमेंट करते रहते हैं, 3-4 बजे तक असाइनमेंट ही करते रहो। एंड देन आफ्टर दैट व्हेन यू गो टू द नाइट मेस सबके साथ, तो मज़ा बहुत आती है उसमें। फिर 1 घंटा आराम से चिल करो, मज़े करो, फिर आके फिर नेक्स्ट डे फिर क्लासेस। तो अकेडमिक बर्डन भी है, चिल लाइफ भी है, एंड देन सब टुगेदर चलता है यहाँ पे। तो ये कुछ अच्छी मेमोरीज मेरी बन गई थी, इसलिए मैं वापस आता रहता हूँ मिलने कभी कभी। नाइस। सो आपको IIT दिल्ली में लगता है कि मतलब कुछ बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी जो कि यहाँ से एक्चुअली में ओपन होती है फॉर द स्टूडेंट जो कि IITs में आते हैं या फॉरेन कॉलेजेस में जाते हैं, तो ज़्यादा अपॉर्चुनिटी क्या लगती है, कहाँ पे अवेलेबल है, यहाँ पर कि फॉरेन में? सो मेरे अकॉर्डिंग अगर कंसिडर किया जाए अपॉर्चुनिटीज़ को, तो टू बी ऑनेस्ट अब्रॉड में ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है। IITs में बहुत ज़्यादा है, मतलब इंडिया में तो हाईएस्ट अपॉर्चुनिटीज़ आपको IIT में मिलेगी, बट अब्रॉड में अपॉर्चुनिटीज़ और ज़्यादा है। कैसे? क्योंकि मैंने IITs में बच्चे 3rd ईयर में इंटर्न करते हैं, मैंने 1st ईयर में करी थी इंटर्न, 2-3 महीने की इंटर्न थी, पर मंथ मैंने अराउंड 1.5 लाख कमाया था। देन तो फिर मैंने ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मैंने फैमिली से 3 साल में बिल्कुल एक पैसा नहीं लिया मैंने अपनी फैमिली से। 19 ईयर्स के बाद मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो गया था। मैंने मतलब इंडिपेंडेंट नहीं, मतलब फैमिली से मैंने बेसिकली नहीं लिया। मैंने जितना 4-5 लाख उन्हीं को भेजे हैं मैंने, बेसिकली मैंने लिया बिल्कुल नहीं है। तो अब्रॉड जाके ये सीन हो जाता है, आपको इनकम कमाने के मल्टीपल सोर्सेज मिल जाते हैं। आप इंडिया में रहोगे, आपको इंटर्नशिप के अलावा और इनकम कमाने के सोर्सेज ही नहीं है, लोग पेमेंट ही नहीं देते किसी चीज़ के लिए, अनलेस आप स्टार्टअप कर रहे हो कुछ, अगर उसके अलावा और कोई स्ट्रीम नहीं है। धीरे धीरे मतलब डेवलप होता है वो। लेकिन अब्रॉड में और भी बहुत सारे जॉब्स के सीन्स होते हैं, बर्तन मांजने की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, अच्छी जॉब्स तो वो TV में रह जाता है। तो अब्रॉड में बहुत सारे सोर्सेज थे, तो जैसे मैंने बताया मैंने फैमिली को पैसे भेजे थे, मैंने कभी नहीं लिया उनसे अभी तक। 2nd ईयर में मैंने फिर 9 मंथ की इंटर्न करी। 9 मंथ? हाँ, अब्रॉड में क्या सीन है मेरे कॉलेज में कि आपको वहाँ का स्केड्यूल ऐसे बनाया कि आपको 9 महीने आपको इंटर्न भी करनी है, मंडे से थर्सडे आप काम पे जाओ, एंड फ्राइडे को वो पढ़ाएंगे कॉलेज में। ओनली 1 डे अभी? सिर्फ 1 डे। वो मैनेज करेंगे कैसे करना है, वो लोग बर्डन भी कम कर देते हैं, आपको सिर्फ 2-3 कोर्स कर रहे होंगे, तो आपको मंडे थर्सडे आप काम पे जाओ एंड फ्राइडे को पढ़ाएंगे वो। तो 9 महीने आप काम करो, तो ये है कि आपको इंडस्ट्री लेवल एक्सपीरियंस भी साथ में मिल जाएगा अलॉन्ग विद योर बैचलर डिग्री। तो 1 साल का एक्सपीरियंस आपके पास पहले से ही है, तो जॉब की इसीलिए वहाँ पर एम्प्लॉयबिलिटी 99% होती है। 99%? हाँ, अरे भाई साहब, मेरे कॉलेज की 99% है। तो 2nd ईयर में इंटर्न हो गई 9 महीने की, फर्स्ट ईयर में 3 महीने की इंटर्न हो गई। अब आया 3rd ईयर की भी इंटर्न जैसे IITians नॉर्मली अप्लाई करते हैं वैसे हम लोग करते हैं, बट एक डिफरेंस है इसमें कि अब्रॉड में कैंपस में नहीं आती कंपनीज, कैंपस में आती हैं सिर्फ लेक्चर देने, हायर करने नहीं आती हैं स्पेसिफिकली वो। ऐसे होता है? हाँ, अब्रॉड में आपको हर कोई भी यूनिवर्सिटी अब्रॉड की आपको ऑफ कैंपस ही अप्लाई करना होता है, तो वहाँ पर फेयरनेस थोड़ी रहती है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, कंपनीज आती हैं आपके कॉलेज में, पॉलिटिक्स हो जाती है थोड़ी बहुत। हाँ। मतलब क्योंकि स्टूडेंट बॉडी है जो कि मैनेज करी होती है, ये भी अंदर की बात है। और डिफरेंस मैंने देखा कि CGPA IIT में बहुत ज़्यादा मैटर करता है, अब्रॉड में मैटर करता है, इतना ज़्यादा नहीं करता, इसलिए थोड़ा सा बच्चे मेंटल प्रेशर लेते कम है थोड़ा सा, क्योंकि कंपनीज इतना ज़्यादा एकेडमिक्स पे GPA पे फोकस नहीं करती हैं, वो फोकस तुम्हारी प्रोजेक्ट्स और तुम्हारी स्किल्स पे ज़्यादा करती हैं, उस पर बहुत क्वेश्चन बन के आएंगे। अच्छा ऐसे? देन 3rd ईयर की इंटर्न फिर नॉर्मली जैसे यहाँ पर अप्लाई करते हैं वैसे वहाँ पर करते हैं, बट IIT में अपॉर्चुनिटी अच्छी है कि यहाँ पर बहुत अच्छी कंपनीज आती हैं। फॉर एग्जाम्पल हांगकॉन्ग में है जेन स्ट्रीट, बट वो हांगकॉन्ग से कम उठाती है, IIT से ज़्यादा उठाती है। ऑप्टिवर है नीदरलैंड्स की, वो भी 17 लाख महीने का पैकेज देती है, वो IIT से उठाती है।
जेन स्ट्रीट 10 लाख का पैकेज देती है, वो भी पर मंथ, वो भी IIT से उठाती है। देन क्वांट बॉक्स, ग्रेविटॉन, JP मॉर्गन, ये सब IIT में आती है। तो टॉप कंपनीज तो आती हैं IIT में। तो दैट इज़ द बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी है। एंड आपको नेटवर्किंग मिलती है, आपके इतने सारे पीयर्स बनते हैं जो कि लाइफ में कुछ बड़ा करने वाले हैं। दीज आर सम ऑफ द बिगेस्ट अपॉर्चुनिटीज है। या लेकिन एक दूसरा साइड ये भी है इस कॉइन का कि जो कंपनीज आती है जैसे ऑप्टिमल यू सेड ना, जो नंबर ऑफ पीपल्स हैं जो कि IITs में हैं, ठीक है, दे आर आई थिंक 1400 बच्चे हर साल हर एक बैच में आते हैं, ठीक है, वो 10 बच्चों को ही लेके जाती है। कैन यू इमेजिन अ रेशियो, ठीक है, एंड द चांसेस ऑफ गेटिंग इनटू इट। सो अच्छी बात है कि बड़ी बड़ी कंपनीज आती है, बट या देयर इज थिंग ऑल्सो कि अगर आप टॉप में नहीं हो ना एकदम IT में भी, मतलब IT में वैसे ही आए हो, उसमें अगर टॉप लेवल के स्टूडेंट नहीं बनते हो तो आपको नहीं मिलेगी कंपनी। तो ये दूसरा साइड भी है। ओके ग्रेट। हाँ, सो टेल मी समथिंग, मतलब अबाउट योर फ्यूचर गोल्स कि आपको मतलब आपका विजन क्या है बेसिकली, क्योंकि मतलब आपने यहाँ का भी लाइफ देखी है, वहाँ की भी लाइफ देखी है, ठीक है, एंड दिल तो हिंदुस्तानी ही है। ठीक है, सो व्हाट इज़ योर विजन, मतलब कुछ तो होगा ना, बहुत बड़ा गोल सबके होते हैं, छोटे छोटे गोल्स भी होते हैं। सो व्हाट यू आर गोना डू फॉर इन योर लाइफ? तो बेसिकली अभी तो मेरी इंटर्नशिप्स इन्हीं सब पे फोकस रहता है, बट साइड बाय साइड मैं थोड़ा स्टार्टअप्स का भी देख रहा हूँ। मतलब इन दी एंड फोकस तो वही है ना, पैसे कमाने का। अब जॉब से तो आप फरारी खरीद नहीं पाओगे, तो फरारी खरीदने के लिए तो आपको स्टार्टअप भी करना पड़ेगा। एंड सोसाइटी को एक डायरेक्ट फॉर्म में हेल्प करने के लिए भी आपको स्टार्टअप करना पड़ेगा। तो लॉन्ग टर्म मेरा गोल तो है स्टार्टअप करने का। एंड अभी मैं सोच रहा हूँ कि ग्रेजुएट होने के बाद कोई अच्छी सी जॉब ले लूँ, 2-3 साल काम करूँ, इंडस्ट्री लेवल में कैसे होती हैं चीज़ें, कैसे मैनेजिंग होती है, वो सब समझ जाऊँ। उसके बाद मैं अपना पर्सनल स्टार्टअप स्टार्ट करूँगा। ये मतलब ये सही है, मतलब यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे लोग कुछ लोग होते हैं जो कि मतलब डायरेक्ट स्टार्टअप वर्ल्ड में कूद जाते हैं, मतलब वो इतना नहीं सोचते कि काम करेंगे। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे भी होते हैं जो कि पहले जॉब करते हैं एंड देन दे डिसाइड कि ठीक है अब अपना खुद का कुछ करना चाहिए, हमें कुछ और कुछ करना है ज़िंदगी में, है ना। ओके नाइस। सो आई थिंक एक लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, नॉट लास्ट, आई वुड से सेकंड लास्ट वन, आई वुड लाइक टू से कि जो स्टूडेंट्स देख रहे हैं बेसिकली अगर +1 +2 के हैं, ठीक है, तो इज देयर एनी मैसेज दैट यू वुड लाइक टू गिव टू ऑल ऑफ देम स्पेसिफिक, मतलब जो कि लगता है कि काश मेरे को किसी ने दे दी होती तो आज मैं कुछ और भी अच्छा कर सकता था शायद? आई थिंक मैं जहाँ पर हूँ वहाँ पर सही हूँ। मैं इससे अच्छा तो शायद मुझे कभी कभी तो गिल्ट होता था कि मैंने JEE की प्रिपरेशन क्यों नहीं करी, क्योंकि अगर मैं कर लेता तो शायद मुझे सेल्फ कॉन्फिडेंस और ज़्यादा होता कि मैंने JEE क्रैक कर लिया। तो इस बात का थोड़ा सा गिल्ट तो रहता है, बट फिर मैं सोचता हूँ कि मुझे भी काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिल चुकी है वहाँ पे। अभी 3rd ईयर की इंटर्न मैं रिवील नहीं करूँगा अपनी, बट मेरी भी काफ़ी अच्छी लगी है। तो फिर मेरी अपॉर्चुनिटीज़ तो वहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी हैं। तो मैं कहूँगा मैं जहाँ हूँ वहाँ सही हूँ। बट आपके लिए मैं कहूँगा कुछ भी चुनो, अब्रॉड चुनो, JEE चुनो, IIT आओ या NIT जाओ, कहीं भी जाओ, बट इन दी एंड यही गोल रखना कि पेरेंट्स की हेल्प करनी है। ट्रूली सेड। अच्छा, मतलब यहाँ के लोग और मतलब वहाँ के लोगों के बीच में क्या डिफरेंस है, मतलब ये मैं पूछना भूल गया। तो हांगकांग इज़ बेसिकली स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन ऑफ चाइना। तो वहाँ पर चाइनीज़ होते हैं, यहाँ पर इंडियंस होते हैं। चाइनीज कैसे होते हैं, मतलब चाइनीज मतलब भाई स्टूडेंट टाइप मैं नहीं सुनना चाहता, ठीक है, मतलब कि मतलब बिहेवियर बेसिकली है ना, द बिहेवियर ऑफ द पीपल टुवर्ड्स यू बिकॉज़ यू आर कमिंग फ्रॉम, मतलब ऐसा कुछ हांगकांग लाइक अमेरिका में मैंने सुना है कि रेसिज्म बहुत ज़्यादा होता है, बट हांगकांग में रेसिज्म नहीं है बिल्कुल भी। एंड बाकी चाइनीज़ कोडिंग में काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते हैं। एंड अब्रॉड में मैंने एक और चीज़ देखी कि मेरी यूनिवर्सिटी में वर्ल्ड लाइक टाइटल मिला है मेरी यूनिवर्सिटी को द मोस्ट इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी इन द वर्ल्ड। मतलब सबसे ज़्यादा दुनिया के इंटरनेशनल स्टूडेंट्स पढ़ते हैं वहाँ पे। रशिया के हो गए, पाकिस्तान के हो गए, नेपाल के हो गए, श्रीलंका के हो गए, बांग्लादेश के हो गए, यूरोप के हो गए, है ना, जापान के हो गए, कोरिया के हो गए। तो हर जगह के बच्चे आते हैं पढ़ने मेरी यूनिवर्सिटी में। तो मेरे बहुत पूरे वर्ल्ड वाइड कनेक्शंस बन चुके हैं। तो ये एक बहुत बेनिफिशियल है। एंड उसमें मैंने ऑब्जर्व किया कि रशियंस एंड कजाकिस्तानीज इन सब की भी कोडिंग स्किल्स काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है। तो आपको बहुत नॉलेज मिलती है। एंड जब आप इतने सारे वैरायटी ऑफ कनेक्शंस में रहते हो तो आपको वर्ल्ड वाइड न्यूज़ के बारे में भी पता रहता है। एंड आप लेवरेज कर सकते हो इन कनेक्शंस को फ्यूचर में भी। तो ये एक बहुत बड़ी एडवांटेज मिलता है अब्रॉड में। सही है, इंडिया में तो नहीं मिलेगा ऐसे। इंडियन बेसिकली। ओके, सो आई थिंक वी आर डन विद ऑल काइंड ऑफ क्वेश्चंस, है ना। मेरे को पता नहीं क्यों अंदर से लग रहा है कि एक लास्ट क्वेश्चन और पूछ लेना चाहिए मेरे को, ठीक है, कि मतलब यहाँ के जो लोग हैं, ठीक है, कभी मतलब यहाँ पे जैसे बर्थडे सेलिब्रेट होता है, ठीक है, और वहाँ पे भी तो मतलब आई जस्ट वांट टू नो कि जैसे यहाँ पे जीपे हुई है और वहाँ पे जीपे जैसा कोई सिस्टम है क्या किसी के बर्थडे पे? मतलब थोड़ी ली जाए लोगों की। पहले बता दूँ GPL का मतलब क्या होता है। GPL का मतलब होता है गांड पे लात। तो जीपीएल का मतलब होता है क्या? तो GPL का मतलब होता है गांड पे लात। यार तो जीपीएल का मतलब होता है पिछवाड़े पे लात। हाँ, तो GPL का मतलब होता है पिछवाड़े पे लात। थैंक्स। तो GPL यहाँ पर IIT में दी जाती है। यहाँ पर बर्थडे आपका हुआ 12 बजे रात के, सब लोग दोस्त आ जाएंगे, आपको मारना शुरू कर देंगे यहाँ पे। चप्पल निकाल लेंगे, आपको मारते रहेंगे। बट अब्रॉड में ऐसा नहीं होता, थोड़े सेंसिबल बच्चे होते हैं ज़्यादा।
तो मारते नहीं है, ऐसे पार्टी होती है नॉर्मल, घूमने जाते हैं, केक कटिंग होती है, ये सब होता है। बट जीप पे मज़ा ज़्यादा आती है, ये बता देता हूँ मैं। भाई आज आप किसी को मार रहे हो, अच्छा वर्ड यूज़ करना चाहूँगा मैं, आज आप किसी को मार रहे हो, कल मतलब आपकी मार पड़ेगी। लेकिन यहाँ पे एक ही है कि देखो बर्थडे आपका, जीपीएल आपकी होगी, दर्द आपको होगा, पार्टी भी आप ही को दे दी है। आई मीन ठीक है भाई, जिसने बनाया अच्छी बनाया, जब तक आपका बर्थडे ना हो। ओके, सो आई थिंक इसके साथ हम एंड करते हैं। एंड आई वुड रियली लाइक टू थैंक्स एकलव्य कि इसने टाइम निकाल के आया और उसने मतलब पॉडकास्ट किया ये, एंड थैंक यू फॉर इट, है ना। एंड आई होप कि मतलब ये पॉडकास्ट मतलब हेल्प करेगा लोगों को, ठीक है। एंड सो या थैंक्स, बाय, टेक केयर।